But our today's topic is photoelectric effect from the metal surface. Phenomena of ejection of electron from the metal surface. Photoelectric effect. Photoelectric effect किसे कहते हैं? The phenomena of ejection of electron. इलेक्ट्रॉन का निकलना, ejection of electron from the metal surface. From the metal surface. But what type of this surface should be? This surface should be metal. And those metal in which electrons are not so tightly packed with their nucleus. So if you see the base metal, so that is lying in the first group. That is hydrogen is the first, that is non-metal. So that's why this has been kept in separation with the other membrane. Other membranes are like this. Hydrogen has been kept separate. Why? Because the hydrogen, periodic table is basically based on the atomic number. So on the base of the atomic number, the first group, that is, it contains 1s1 electron. So that's why hydrogen have 1s1, lithium 2s1, beryllium, lithium, sodium 3s1, potassium 4s1, rubidium 5s1, cesium 6s1, 6s1, 5s1, 4s1, 3s1, 2s1, 1s1. Beta, see here, if you are talking about the base metal, then in any group, last one is francium. This is radioactive. So we will not talk about this metal. The best metal for photoelectric effect is cesium, because as we know, as we are descending down the group, the size of atom increases. For example, in lithium, electron is present in second orbit, outermost orbit. That's why there is attraction. But this attraction decreases in sodium because the electron is present in the third orbit, last electron. So this distance from the nucleus is increasing. So the force of attraction, because nucleus is positive, electron is negative. In case of potassium, fourth orbit, so this attraction is further decreasing. In case of rubidium, this lies in the fifth orbit. In case of cesium, this is lies in the sixth orbit. So this electron is very loosely bound. And the photons of light that is coming from the sun and that is incidenting on the surface of Earth. By the atmosphere of Earth, around 60% of light is reflected back in the space. Only the 40% reaches to our Earth. So that's why we have to utilize that amount of light energy. Now, photoelectric effect, we use light energy for the production of electric current. And we choose that metal through which light can easily pick out this electron. When this electron will gain energy in the form of light, they will move out from the boundary of atom. But ये क्या होगा? Atom की boundary को छोड़ के चला जाएगा. Why? Because we have already studied about the fact that in first orbit, what is the energy of electron? 13.6 into z square upon n square. In second orbit, minus 3.4. So see here, value of negative is decreasing. That's why we can say that more negative value means more attraction. The value of
in third orbit is minus 1.85. It means the distance is increasing, so the attraction with the nucleus decreasing. Now, if the electron will be present in sixth orbit, then their energy will be very, very less negative. We can see that energy of electron will be in higher energy level. So from here, for example, in sixth orbit, what is the energy? Minus 13.6 into Z for hydrogen atom 1 for cesium. It is whatever be the atomic number, we will put this Z square, this is very large, and upon N is 6 square. So from here, if you are taking the example of hydrogen, 6 square is 36. This energy is very, very less. So to remove their negative energy means bounded energy. Negative energy means bounded energy. But when we are in just falling a light, if we are making a light to incident over this atom, then we are providing positive energy. This positive energy combined with this negative energy, and when this total energy become negative, it will remove out from the atom. When it becomes zero, it will just remove out. When the energy will be positive, it will leave the boundary and move to a certain velocity. बेटा मानिए हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. बेटा इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? इन फर्स्ट ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस 13.6. बेटा आपने अगर इसे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव एनर्जी दिया इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, लाइट के फॉर्म में दिया, लाइट के पार्टिकल्स की एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. बेटा प्लस 15 माइनस 13.6 ये क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये तो पॉजिटिव हो गया बेटा. बेटा आपने अगर केवल माइनस 13.6 इसकी एनर्जी आपने फोटोन के फॉर्म में प्लस 13.6 दिया बेटा, इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव जीरो, इसकी टोटल एनर्जी जीरो. ये क्या करता बेटा? आप एक ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव आ जाती है बाउंड्री का जस्ट बाहर चला जाता है, एटम के अट्रैक्शन से बाहर चला गया. और if we have given this amount of energy, then this energy left. The energy of electron become this होता. The energy of electron is positive. बेटा जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव हो गई वो एटम की बाउंड्री से निकल गई. जब तक वो अट्रैक्शन में रहता है उसकी एनर्जी नेगेटिव है. Once it moves out, बेटा उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है. और अगर जस्ट जाकर के वो बाउंड्री के पास चला जाए, बाउंड्री के ऊपर चला जाए अट्रैक्शन से बाहर, उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी. बेटा यहाँ पर इसकी एनर्जी प्लस 1.4 यानी कि जीरो नहीं, यहाँ के बाद वो कुछ काइनेटिक एनर्जी से भी निकलेगा. And more be the kinetic energy, more will be the velocity of electron, and more will be the current. So if we are falling light over this metal, then light will emit, electron will emit. Why the electron will emit? Because this light consists of small packets of energy. बेटा आइंस्टाइन ने क्या देखा? आइंस्टाइन ने ये देखा कि अगर दो फोटोन, लाइट के दो फोटोन पड़ते हैं बेटा, तो इस एटम के अंदर से दो ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. इट मींस एक फोटोन्स क्या है बेटा? पैकेट्स ऑफ एनर्जी इन लाइट. पैकेट्स ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे पार्टिकल्स का फॉर्म में एनर्जी आते हैं लाइट के फॉर्म में. उनकी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है, डेफिनेट वेवलेंथ होते हैं. दिस पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटोन्स. दिस पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटोन्स. आइंस्टाइन ने ऑब्जर्व किया, व्हाट ही हैज ऑब्जर्व. बट अगर चार इलेक्ट्रॉन गिरे, चार फोटोन गिरे, तो वो चारों फोटोन चार डिफरेंट इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे.
और फिर 4 इलेक्ट्रॉन को ही निकालेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, बशर्ते कि बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए तभी निकलेगी। और उस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बताया बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा पड़ रही है तभी ऐसा देखने में लगता है कि अगर 4 फोटोन गिरे तो 4 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, और अगर 10 फोटोन गिरे तो 10 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे उस मेटल के सरफेस से, और अगर 10,000 फोटोन गिरते हैं तो 10,000 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। यानी कि जितने नंबर ऑफ फोटोन्स गिरे, ज्यादा से ज्यादा गिरेंगे तो बोलेंगे उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि एक फोटोन के अंदर फिक्स एनर्जी है बेटा, एच न्यू, एच न्यू। 2 फोटोन के अंदर 2 इंटू एच न्यू। और अगर n नंबर ऑफ फोटोन गिर रहे हैं एक सेकंड में तो उनकी टोटल एनर्जी लाइट की हो जाएगी n इंटू एच न्यू। तो बेटा n नंबर ऑफ पार्टिकल गिरे तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसी फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल विद द मेटल if the light that is incidenting on the that is falling on the metal surface had suitable frequency or greater than that frequency, and that frequency is called threshold frequency. Because बेटा हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि किसी भी फोटोन की एनर्जी को प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, नियम फ्रीक्वेंसी। अभी देखिए बेटा, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इन्होंने बताया कि जो लाइट की एनर्जी पड़ती है बेटा उसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में चला जाता है। ये एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में चला जाता है एटम की बाउंड्री के से बाहर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में चला जाता है उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बाकी की जो एनर्जी रहती है इसकी वो कहां खर्च हो जाती है बेटा? इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। बेटा इस इक्वेशन को लिख कैसे सकते हैं? H into nu, energy of photons, some part of energy H into nu naught, threshold frequency, H is Planck constant, plus rest one is kinetic energy of electron, half mass of electron because electron is ejected, and velocity of electron ka whole square. This is the kinetic energy of electron. So H is the energy of photon, H into nu naught work function. This is the amount of work done or energy required to eject the electron from the metal surface, and rest amount of energy given in the form of kinetic energy to the photoelectron. But for example, let us assume that for any metal, if the work function is 13.6 electron volt, for example, this is very large. For example, 5 electron volt. Work function is 5 electron volt. Work function. But a work function को ऐसे 5 W से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
और एनर्जी ऑफ लाइट h, और रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन इन द फॉर्म ऑफ। जैसे आपने ये देखा कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है बेटा किसी भी मेटल का, but what you have to see, what is the work function of the metal? 5 electron volt. But how much energy you have, how much energy of light you, but see here once again you see, for example this metal is there, let this be the cesium or any another metal. If this work function of this metal or threshold energy of this metal is 5 electron volt, and you are just following a light, you are making a light to fall over this metal of how much energy? 8 electron volt. The energy of one photon is 8 electron volt. Now out of this 8, 5 electron volt will be utilized in removing out electron from the metal surface against the attraction force of the nucleus, and rest 3 electron volt, this electron will gain kinetic energy. How much energy? 3 electron volt. बेटा आप और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एच न्यू। एच तो कांस्टेंट है, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी एनर्जी को बढ़ाने। बेटा आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इस बार एनर्जी डाली है तो आपने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया, बिकॉज एच प्लैंक कांस्टेंट बेटा फिक्स होता है 6.626 into 10⁻34। बेटा ये फिक्स है, आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा लाइट की एनर्जी। इस बार 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज तो हो गया क्योंकि मेटल की वर्क फंक्शन फिक्स होती है, किसी भी मेटल की फिक्स होती है। और फिर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मिला बेटा? इससे काइनेटिक एनर्जी मिला, यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बेटा इस बार अगर हमने 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाले तो इसमें से तो 5 यूज हो गया, बाकी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मिले? इसे काइनेटिक एनर्जी मिले। इट मींस as we are increasing the kinetic energy, as we are increasing the frequency of light which is incidenting over the surface of metal, the kinetic energy is increasing. But this equation is called what? Photoelectric equation. This equation is called photoelectric equation. Now beta, see how Einstein explained the photoelectric effect phenomena. बेटा उन्होंने एक ट्यूब लिया, इस ट्यूब के अंदर मेटल को ले लिया, ये मानो कि आपने सीजियम मेटल को लिया। बेटा दिस इज सीजियम मेटल and you make light to fall over it. Light energy E। बेटा इससे क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन निकल के किधर जाएंगे? चलिए मैंने इसके लिए रास्ता बना दिया, यहाँ एक प्लेट लगा दिया और उसको बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब इसे बेटा बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे बेटा? एनोड, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन देगा। आप इधर आइए बेटा, सारे इलेक्ट्रॉन एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। बेटा दिस इज कॉल्ड एनोड। बेटा ये बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। What anode will do? Anode will direct this electron that is emitted from the cathode surface in a different direction, ताकि क्या बन सके बेटा? करंट बन सके। इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, करंट ऐसे बनेगा बेटा। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव करे एंड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप, सर्किट में करंट का फ्लो होने लगेगा। जब तक लाइट पास करते रहेंगे इलेक्ट्रॉन एमिट होते रहेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एंड इन अपोजिट डायरेक्शन करंट कीप्स ऑन फ्लोइंग। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा उन्होंने देखा, ग्राफ ड्रॉ किया,
बेटा उन्होंने क्या बताया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट में नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑन पर मीटर स्क्वायर एरिया. Intensity means what? Intensity of light means how much light energy falling on 1 meter square area in 1 second, and this area is kept at a distance of 1 meter from the source of light. For example, if this torch is there, if laser beam is there like this, बेटा इससे लाइट निकल रही है 1 मीटर दूरी पर, इसके सामने परपेंडिकुलर 1 मीटर स्क्वायर एरिया रखा, 1 सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी फॉल करती है इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड. हाउ मच डिस्टेंस? 1 मीटर. एनर्जी फॉल ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया in 1 second. That is called watt per meter square. Watt per meter square. Watt energy upon time, watt per meter square. That is called intensity. Amount of light energy falling on 1 meter square area kept at a distance of 1 meter in 1 second. बेटा दूरी बढ़ाएंगे इंटेंसिटी घट जाएगी. What is the unit of intensity? Watt per meter square. Watt per meter square. बेटा ऐसे लिखते हैं नीचे में watt per meter square. इसको ऊपर में लिखेंगे तो पावर -2 लिखेंगे. Watt per meter square. बेटा इंटेंसिटी directly proportional to number of photon. Directly proportional to number of photons. यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स जितना ज्यादा फॉल करेंगे किसी मेटल के सरफेस पर, बेटा इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स. यानी कि किसी मेटल पर अगर मैंने बताया बेटा अगर 10 फोटोन गिरे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 20 गिरे तो 20 निकलेंगे. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन ओनली दिस टाइप ऑफ फोटो एमिशन takes place. बेटा उन्होंने देखा कि अगर लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो क्या होंगे. जस्ट आई हैव एक्सप्लेन. ग्राफ कैसा बनेगा? उन्होंने वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या रखा बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट. और इस एक्सिस पर इंटेंसिटी को रखा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. यानी कि more be the number of photon that is falling on the metal, more will be the photoelectric current. क्यों बेटा? करंट का फॉर्मूला होता है I is equals to n number of electron in per unit volume. जितने ज्यादा निकलेंगे पर यूनिट उतने ज्यादा करंट होगा. NaEVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है. तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स. फोटोन्स की संख्या बढ़ा रहे बेटा, दैट इज फॉलिंग ऑन द मेटल. तो व्हाट इज गोइंग ऑन बेटा? क्या बढ़ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड. एंड व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय एनी मेटल, that is called cathode. This is called what? Cathode, from which electron emitted. So as the number of electron emitted, the current, more be the current will increase. So more be the number of electron emitted, more will be the magnitude of electron, more will be the magnitude of electric current. So we see that as we are increasing the intensity of light, the photoelectric current goes on increasing, goes on increasing. बेटा देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁹ जूल होते हैं.
और 1 जूल में इसी को रिवर्ट कीजिए बेटा, यहां लाइए एक 1 जूल 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इस माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे 10 पावर प्लस 19, 10 इंटू 10 पावर 18, 1.6 से डिवाइड करेंगे, ये आता है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है बेटा, इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ये याद रखना है बेटा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया अभी। बेटा to change electron volt into joule we have to multiply by this quantity. To change joule into electron volt multiplied by this quantity, 6.25 into 10 to the power 18. चलिए बेटा देखिए, आइंस्टाइन का पहला इक्वेशन था, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो दिखाया उसके बाद उन्होंने बेसिकली क्या बताया कि as we are increasing the intensity, it means more number of photon will fall on the metal, so more electron will be released, so current is directly proportional to intensity of light. ये बेटा इनका पहला ग्राफ था, इस ग्राफ के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया। अभी दूसरे ग्राफ को बताने से पहले मैं बताऊंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है? What is stopping potential? बेटा पहले आप देख लीजिए पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। और बेटा देखिए आप अगर इस प्लेट को पॉजिटिव होने, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट एनर्जी फॉलोगे बहुत तेजी से निकलेंगे, इस मेटल से बहुत तेजी से निकलेंगे। ये इक्वेशन था बेटा, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। बेटा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रॉन और तेजी से निकलेगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से। अब अगर उस इलेक्ट्रॉन को आप रोकना चाहें तो ये निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा और इसे रुकेगा, क्योंकि वर्क डन जब निगेटिव हो जाएगा बेटा, वर्क डन when work done is positive kinetic energy increases, when work done is negative kinetic energy decreases। बेटा हमें काइनेटिक एनर्जी को रोककर मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन हमें उसको उल्टा वहीं पर, चलो भाई यही रहो निकलना नहीं है। तो this plate, this anode plate had to connected with the negative terminal of the battery, निगेटिव निगेटिव हो गया बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा एंड दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेटा जब इस एनोड को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अब ये एनोड नहीं कहलाएगा, अब ये जो पोटेंशियल ऑफर करेगा वो अपोजिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करेगा। और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। बेटा फाइनल क्या होगा, जीरो और माइनस इनिशियल हाफ एम वी ई स्क्वायर, और ये वर्क डन किसके बराबर होगा, माइनस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते और वी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस ई वी इज इक्वल टू माइनस हाफ इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर। बेटा माइनस माइनस कैंसिल आउट, और ये पोटेंशियल है वीएस। बेटा वीएस को क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी माइनस माइनस कैंसिल आउट, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, by charge on electron. But if simply we can write stopping potential is equal to kinetic energy of electron by charge on electron. Kinetic energy of electron by charge on electron is E. काइनेटिक एनर्जी बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेटा जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेगी हमें उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी, दैट नेगेटिव potential is called stopping potential. And what is the formula for stopping potential, Vs? तो
this is that opposing potential, this is that negative potential. Positive potential increases the velocity and negative potential decreases the velocity. बट बेटा जब इसे एनोड से कनेक्ट कर दिया तो ये से क्या करेगा, इसे क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करके सर्किट को पूरा करेगा. और जब ऑपोजिट कनेक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड अपोजिंग और नेगेटिव पोटेंशियल. दिस इज दैट नेगेटिव पोटेंशियल which opposes the photoelectric emission of electron. emission क्यों बेटा, काफी तेजी से निकला, उसको निकलने नहीं देना, रोक देना उसकी काइनेटिक एनर्जी को. तो photoelectric emission of electron is called stopping potential. Stopping potential. बेटा ये डेरिवेशन होता है. This is the derivation of stopping potential. Now see here, how we can represent the graph. बेटा इन्होंने इस एक्सिस पर अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल रखा, क्या रखा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाई एक्सिस पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इस पर रखा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट. बेटा अभी मैंने आपको बताया जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल. बेटा ये भी आपको स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन. लेकिन एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बाद बेटा ये 0 1 2 3 4 ये डेफिनेट फ्रीक्वेंसी आती है, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ये क्या होगा बेटा, न्यू नॉट. न्यू नॉट इज कॉल्ड, बट व्हाट इज न्यू नॉट, न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. न्यू नॉट इज कॉल्ड, न्यू नॉट को क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. उन्होंने बोला कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहे, इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहे, तो उनको रोकने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए, 0. ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है. बेटा ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते ये लाएंगे और इससे ज्यादा करेंगे, ये लाकर छोड़ेंगे. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में केवल इलेक्ट्रॉन निकल के मेटल के सरफेस पर आएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है बेटा, 0. अब फ्रीक्वेंसी से बढ़ाए तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, अभी बताया था. तो as we are increasing the frequency, stopping potential goes on increasing because frequency बढ़ाने से क्या बढ़ते हैं बेटा, क्या बढ़ते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी. बेटा स्ट्रेट लाइन होगा बिल्कुल. So as we are increasing the frequency, kinetic energy increases and hence the stopping potential, that is proportional to it. That is proportional to it. This is called threshold frequency. बेटा थर्ड उन्होंने क्या बताया, थर्ड ग्राफ जो है, and this graph is between photoelectric current. This is again photoelectric बेटा इसे डायरेक्ट मैं आई लिख रहा हूं वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं बेटा, इस पर आप दीजिए एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव जो पोटेंशियल दिया था. बेटा ये ग्राफ उन्होंने इस तरह से बनाया,
बेटा उन्होंने क्या देखा कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जा रहे हैं, I2 कर दिया, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट L1, L2, L3, L1, L intensity of light, L4 what? L4 intensity of light, intensity of light. बेटा ये सबसे बड़ी इंटेंसिटी L3 है, उससे छोटी L2 है, and smallest one is L1. So beta, as we are increasing the intensity, the maximum value of current goes on increasing. So more number of photons fall, the maximum value of current increases. But this graph is possible when the light incident on the metal surface have frequency greater than threshold frequency. On this axis, what is this? Photoelectric current. This is photoelectric current. On this axis, this is current. So as we are increasing the intensity, देखिए बेटा अगर intensity सबसे lowest है, सबसे low current, maximum value of current, और ज्यादा बढ़ा है, maximum value of current और बढ़ा, और ज्यादा बढ़ा दिया intensity, number of photon और बढ़ गए, metal पर गिरने वाले, तो current क्या होगा? Increase हो जाएगा. But three light have same frequency. All the light have same frequency. तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल निगेटिव एनोड को पोटेंशियल निगेटिव किया बेटा, ये क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल. अगर तीनों लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या सेम हो जाएगा उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल. बिकॉज क्या होगा बेटा सेम? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है बेटा? फ्रीक्वेंसी पर. So frequency of if all the incident light are same, then the kinetic energy in all these three cases will be same. Kinetic energy of what? Photoelectron will remain same. But if kinetic energy remains same, stopping potential remains same in all the three cases. Beta, in our next class, we will discuss about the some other parts of photoelectric effect.